Hello everyone and welcome to today's session. Myself Bharat Rathod from Ahmedabad branch and I am serving in our firm Pradeep Jain and Associates since 2003. We are having our head office located at Jodhpur and branch office at Ahmedabad. Under the guidance of CA Pradeep Jain sir, it is our honor to conduct this webinar. We hope all our viewers are safe and taking care of themselves. I will just give you a brief introduction for our presenter. This webinar related to annual return with some case studies taken by the CA Preksha Jain. With our presenter for the day comes with a wealth of knowledge in indirect taxation, having experience of more than 3 years. She has an in-depth knowledge of GST. Presently, she is involved in conducting internal and statutory audit under GST. She is also engaged in handling advisory, legal, and litigation matters along with day-to-day compliance work in GST. Moreover, she is actively engaged in deliberations with respect to various practical issues and challenges faced by taxpayers in GST. She is also a regular writer, and her articles have been published on various renowned sites like Taxman, Syntax Publications, Tax Guru, etc. Apart from pursuing her profession, she is also kind-hearted and is active participant in various NGOs. We also have 10 minutes for answering any queries of our attendees. If you have any queries, you can post it in question and answer section appearing on your screen. I would like to give my regards once again to CA Pradeep Jain sir. So let us begin the webinar, and now I hand over the session to CA Preksha Jain. This webinar is all about learning more about the annual return 9 and reconciliation statement 9C. Now, this webinar may particularly be learning more about case studies relating to 9 and 9C, some suggestions and some problems faced by the taxpayer filing 9 and 9. हम स्टार्ट करेंगे किन किन असेसिंग को एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी पर्सन जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको मैंडेटरीली फाइल करना पड़ेगा GSTR 9. Now there are some following categories who are not required to file annual return: casual taxable persons, then input service distributors, non-resident taxable persons, और जो पर्सन जिनको टीडीएस से टीसीएस काटना पड़ता है आफ्टर सेक्शन 51 और 52, एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस. इन पांचों कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स को एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. हाउएवर, सर्टेन रिलैक्सेशंस प्रोवाइड किए गए थे बाय गवर्नमेंट, जिनमें असेसीज को टर्नओवर के हिसाब से रिलैक्सेशन दिए गए थे. जो भी टर्नओवर, जिनका भी टर्नओवर बिल्कुल 2 करोड़ से कम है, उनके लिए ऑप्शनल है. दे वांट टू फाइल 9 और 9C, इट्स ऑन देयर डिस्क्रिप्शन. इन असेसीज का टर्नओवर जिनका 2 करोड़ से कम है और 5 करोड़ तक है, उनके लिए कंपल्सरी फाइल करना था 9 और 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18. हाउएवर, कुछ चेंजेस किए गए थे फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19. जिन असेसीज का टर्नओवर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में, उन्हें सिर्फ 9 फाइल करना है, सी फाइल करने की जरूरत नहीं है. और जिन असेसीज का टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है, उन्हें 9 और 9C दोनों फाइल करना है. जो नोटिफिकेशन जिससे रिलैक्सेशन दिया गया था वो है 16/2020, जिसमें 18-19 के लिए रिलैक्सेशन दिया गया था कि जिनका भी टर्नओवर बिलो 5 करोड़ है उन्हें 9 करने की जरूरत नहीं है. नाउ जो 47/2019 से बोला गया था कि जिन एसएससीज का टर्नओवर बिलो 2 करोड़ है उनके लिए ऑप्शनल है और इन केस वो फाइल नहीं करते हैं तो जो भी ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स आ रहे हैं वो डीप मान लिए जाएंगे. तो एक तरह से ये एसएससीज के लिए परेशानी की बात है, क्योंकि इन केस उनके जो भी ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स है वो गलत
था, तो उनके लिए मैंडेटरली हो जाता है करना और 9 फाइल करना। तो ये डीमिंग प्रोविजन जो है वो नहीं रखना है, इससे बेटर था कि जो भी ऑडिट होती तो जो भी पेमेंट होता वो ऑटोमेटिकली DRC 03 से एसएससी अपने आप ही कर देता। मैं बताना चाहूंगी कि पीनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। तो इन केस आप एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि 100 पर डे के हिसाब से है और 0.25% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर। और सेम पेनल्टी आपको एसजीएसटी के लिए भी पेमेंट करना है। हाउएवर सीबीआईसी ने एक प्रेस रिलीज इशू 2020 जिन्होंने ये रिकमेंड किया था कि कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 17 18 और 18 19 उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से बिलो एप्लीकेशन की इशू हुआ है। मोर ओवर एक और प्रॉब्लमेटिक रहती है कि उन असेसीज का क्या जिन्होंने अपना एनुअल रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दिया है विद लेट फीस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17 18, तो उन्हें रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा या उनके कॉस्ट का पार्ट बन जाता है, वो अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। नाउ ये तो हमें पता ही है कि एनुअल रिटर्न सेपरेटली फाइल करना है फॉर जीएसटी कंसोलिडेटेड। जीएसटी के हिसाब से हर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से एनुअल रिटर्न सेपरेटली फाइल होगा। नाउ मैं करना चाहूंगी फॉर्म GSTR 9 के बारे में। ऑलरेडी हम बहुत कुछ जान चुके हैं 993 कैसे फाइल करना है। मैं सिर्फ एक ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि किस किस तरह के रिलैक्सेशन दिए थे एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 18-19 के टाइम पे गवर्नमेंट ने फॉर फाइलिंग ऑफ GSTR 9 एंड 9C ऑफ 17 18 एंड 18 19। टेबल 4 जो है वो आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है। इसमें एक जो रिलैक्सेशन दिया था वो ये था कि जो भी क्रेडिट या डेबिट नोट्स है वो आप ऑप्शन कर दिए गए थे, और क्रेडिट और डेबिट नोट्स और जो भी अमेंडमेंट्स है वो आप 4A B C D और E इन सब में नेट ऑफ करके दिखा सकते हैं। क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स और जो भी सप्लाईज टैक्स डिक्लेयर टू अमेंडमेंट जिससे आपने टैक्स बढ़ाया है या घटाया है, ये नेट ऑफ करके आप 4 में दिखा सकते हैं। नाउ पार्ट 2 है। पार्ट 1 था जिसमें आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जिसमें टैक्स पेमेंट होता है, और पार्ट 2 है जिसमें टैक्स पेमेंट नहीं होता है लेकिन वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट है, जैसे कि जीरो रेटेड सप्लाई, सप्लाई टू एसईजेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और जिसमें रिसिपेंट लाइबल है, मतलब कि अपने आपने एज सप्लायर कोई सर्विसेज दी है जिसमें सामने वाला रिसिपेंट लाइबल है आरसी में पेमेंट करने कोई तरह की निल रेटेड नॉन जीएसटी सप्लाई। नाउ इसमें एक रिलैक्सेशन दिया गया था कि जो भी एग्जाम निल रेटेड नॉन जीएसटी सप्लाई कंसोलिडेटेड फिगर आप एग्जाम्प्टेड में दिखा सकते हो, और क्रेडिट डेबिट नोट और सप्लाईज जो भी डिक्लेयर्ड आपने की थी थ्रू अमेंडमेंट वो आप नेट ऑफ करके ही कॉरेस्पॉन्डिंगली दिखा सकते हैं 5A 5B और 5C और 5। और पार्ट थर्ड है डिटेल्स ऑफ आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। इसमें जो रिलैक्सेशन था पहले था कि आपको जो भी तरह के अपने क्रेडिट लिए वो इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस में बाइफिकेट करके लिखनी है, लेकिन आफ्टर जो नोटिफिकेशन इश्यू हुआ था रिलैक्सेशन से रिलेटेड उसमें रिलैक्सेशन ये दिया गया कि जो भी आपने ऑल अदर आईटीसी ली है GSTR 3B में वो आपको सारी इनपुट्स के अगेंस्ट दिखानी है। जो भी आपने आरसीएम से रिलेटेड क्रेडिट ली है वो 6D के अंदर इनपुट्स में दिखा सकते हैं, और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के लिए भी सेम एप्लीकेबल है, सारा कुछ आप इनपुट्स के अगेंस्ट में दिखा सकते हैं, आपको कोई बाइफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। इनपुट्स ऑफ सर्विसेज आ गया, जो भी आईएसपी से रिलेटेड आपने क्रेडिट मिली वो आप कॉरेस्पॉन्डिंगली दिखा देंगे। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है ट्रान 1 से रिलेटेड हमने क्रेडिट ऑलरेडी अपने 17-18 का एनुअल रिटर्न में ले चुकी होगी, लेकिन जब हम 18-19 का एनुअल रिटर्न फाइल करने लगते हैं तो ऑटो पॉपुलेट होके आता है ट्रान 1 का क्रेडिट। तो इस केस में क्या किया जाए? इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो भी ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आ रहे हैं वो हम इरेज करके और सेव एज करके आगे प्रोसीड करें फाइल।
अब टानवन से रिलेटेड एक नोट ऑर्डर आया था 1 of 2020 डेटेड 7 February 2020। उन असेसीज को एक रिलैक्सेशन दी गई थी जो किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण अपना टानवन फाइल नहीं कर पाए थे, या फिर मतलब कोई रिकमेंडेशन दी थी जीएसटी काउंसिल ने कि इन टैक्स पेयर्स को एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए क्योंकि उनके पास प्रॉपर डिजिटल एविडेंस थे कि क्योंकि टेक्निकल ग्लिच थी वाइल फाइलिंग टान वन, तो वो अपना लास्ट डेट से पहले टान वन फाइल नहीं कर पाए। तो उन केसेस में उन्हें एक एडिशनल बेनिफिट दिया गया कि आप अपना टानवल फाइल कर सकते हैं। तो जिन जिन एसएससीज ने 18-19 में टानवल फाइल किया था वाइल अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ द ऑर्डर रिलीज, तो उन्हें अपना जो भी टानवन का फिगर जो उन्होंने अवेल किया था वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंगली इसमें 9 में दिखाना होगा। नाउ जो भी आईटीसी आपको रिवर्स करनी थी एज पर रूल 37, 39, 42, 43, 17(5) में, वो आप टेबल जो 7H है उसमें एक कंसोलिडेट करके दिखा सकते हैं। हाउएवर जो रिवर्सल आपने टान वन और टान टू से रिलेटेड किए वो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग ही दिखाना है, उसको कहीं कंसोलिडेट करके नहीं दिखना है। नाउ जो रूल 37, अब आप जानते हैं कि अगर आपने 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया है क्रेडिटर्स को तो इस केस में आपको रिवर्सल बनता है। रूल 59 है कोई भी एक्सेस या रॉन्ग क्रेडिट ली गई हो आपने आईएसडी से द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है। 42 43 वो है कि अगर आप नॉन बिजनेस यूज के लिए आपने कोई क्रेडिट ली उससे रिलेटेड कोई भी रिवर्सल या फिर टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई दोनों में आप डील करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रपोर्शन रिवर्सल बनता है वो आपको रिवर्स करना है। 17(5) जो भी इनएलिजिबल क्रेडिट है वो आपको रिवर्सल बनती है। वो टेबल 8 जो है वो प्योरली जीएसटी 2A से रिलेटेड है। 8A में जो भी ऑटो पॉपुलेट होकर आ रहे हैं फिगर्स वो आएंगे। इसमें एक ऑप्शन दिया गया था एसएससी को कि इन केस वो ये टेबल को फाइल करने में असमर्थ है या किसी तरह की इश्यूज आ रहे हैं, उसके पास एक ऑप्शन था कि वो जो टेबल 8A से 8D है वो पीडीएफ फॉर्मेट में ड्यूली साइन करके अपने ही साइन करके वो पीडीएफ फॉर्मेट में 9C के साथ अपलोड कर सकता है। उसे ये टेबल फाइल करने की जरूरत नहीं। ना जो ये टेबल 9 है वो पर्टिकुलरली वही है जो भी ये इसमें सारे कुछ अपने जो भी टैक्स पे किया था ड्यूरिंग 18 19 3B के अंदर टैक्स पेबल हम टैक्स पेबल वो आएगा जो एक्चुअल आपका बनता है पेड थ्रू कैश और पेड थ्रू आईटीसी ऑटो पॉपुलेटेड आएगा। तो ऐसे खूब सारी सिचुएशंस होगी जिसमें आपका टैक्स पेबल विल नॉट बी मैचिंग विद द टैक्स पेड। तो इस केस में आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है वो 9C में देनी है कि किस रीजन की वजह से आपका टैक्स नहीं हो रहा है मैच एक दूसरे से, जो पेबल है और जो पेमेंट आपने किया है। नाउ विल प्रोसीड फर्दर। पार्ट फिफ्थ में वो ट्रांजेक्शन आएंगे जो आपने 18-19 से रिलेटेड थे, लेकिन अप्रैल से लेकर सितंबर 19 में देखा है इसमें कोई भी तरह की आपने अगर सप्लाईज या फिर टैक्स डिक्लेयर किया अमेंडमेंट से और डेबिट नोट्स दिखाए तो वो आपको 10 में दिखाना है। और इनकेस आपने सप्लायर टैक्स रिड्यूस किया है थ्रू अमेंडमेंट और या फिर किसी तरह का क्रेडिट नोट आपने दिखाया है 18-19 से रिलेटेड अप्रैल 19 से सितंबर 19 के बीच में, तो वो आपको इसमें शो करना है। 12 और 13 जो भी रिवर्सल आपने की 18-19 से रिलेटेड अप्रैल से सितंबर में अगर आपने कोई आईटीसी ली है तो वो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग दिखाना है। हाउएवर सरकार ने रिलैक्सेशन दिया था कि इट इज ऑप्शनल, you have to decide whether you want to fill this table or not। जो भी डिफरेंशियल टैक्स बनता है पर्टेनिंग टू 10 और 11 जो भी आपने टैक्स कम दिखा है ज्यादा देखा है उससे रिलेटेड आपका जो भी टैक्स बनता है वो आपको पेबल और पेड में दिखाना है। और पार्ट 4 जो है वो डिमांड और रिफंड से जो भी आपने रिफंड लगा है या फिर कोई भी डिमांड अगर डिपार्टमेंट से रेज हुई तो उसकी जो भी डिटेल्स थी वो आपका ऑप्शन आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है।
पार्ट 6 में था कि जो भी आपने टैक्स पेयर से परचेज किया या फिर पार्टिसिपेंट कितना है वो जॉबों के लिए भेजा तो 1 और 3 साल में रिटर्न नहीं हुआ तो वो में माना जाएगा, या फिर जो अप्रूवल बेसिस पे भेजा वो 6 मंथ्स में रिटर्न नहीं हुआ है तो वो सप्लाई माना जाएगा। इस तरह की ये तीनों चीजें आपको इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग दिखानी थी जो कि अब ऑप्शनल कर दी गई है। HSN में सभी इनवर्ट और आउटवर्ट दोनों के लिए ऑप्शनल कर दी गई है, तो ये भी एसएससी का डिस्क्रिप्शन है कि उन्हें दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो वो अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। नाउ विल प्रोसीड टू 9C। इसमें बेसिकली ज्यादा रिलैक्सेशंस नहीं दिए गए हैं। इसमें एक मेजर रिलैक्सेशन दिया गया था कि जो भी ये टेबल है टर्नओवर की जो भी डिफरेंट हमको बाइफर्केशंस देने थे टर्नओवर में 5A में, जैसे कि 5A तो कंपल्सरी अपने एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से टर्नओवर देना था, लेकिन जो 5B से लेके 5 तक जो भी डिफरेंट बाइफर्केशन देने थे टर्नओवर के वो हटा के अब टोटल एक समराइज फिगर कंसोलिडेटेड फिगर 5O में डाल सकते। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि 5O में आप जो जो फिगर डाल रहे हैं उसके प्रॉपर वर्किंग मेंटेन करिए। इन केस आपको फर्दर जब भी डिपार्टमेंटल ऑडिट आती है या फिर फर्दर कभी आपको चेक करना हो कि इसमें क्या हो, तो कंसोलिडेटेड फिगर से आप ये बता नहीं पाएंगे कि इसमें क्या किससे रिलेटेड है, तो एक प्रॉपर वर्किंग जरूर अपने साथ मेंटेन करते रहिए। 5-7 में जो भी एग्जेम्प्टेड रिलेटेड अप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है वो सारा कुछ आएगा। ये जो टेबल 9 है वो रेट वाइज आपको बताना है कि अपना क्या आउटवर्ड सप्लाई आरसीएम के अंदर जो पेमेंट किया रेट वाइज और जो अपना आउटवर्ड सप्लाई के अंदर जो पेमेंट किया रेट वाइज। फिर जो टेबल 12 है वो रिकंसिलिएशन है आईटीसी का। इसमें जो 12B और 12C वो ऑप्शनल कर दिया गया था, आपका डिस्कशन है आप वो फाइल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, उसके अगेंस्ट में फिगर्स दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। 12B वो था ऐसी आईटीसी जो आपने बुक तो अपने बुक्स में 18-19 में कर ली है, लेकिन अपने बुक पुरानी यस में कर ली है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने बुक 17-18 में कर ली थी लेकिन आपने क्लेम 18-19 में की। 12C है जो आपने बुक 18-19 में की लेकिन आपने ली है 19-20 के अंदर। जो टेबल 14 थी जो आपको बाइफर्केशन देना था एक्सपेंस वाइज वो बिल ऑप्शनल कर दी गई है इंटायर। ये आपका डिस्क्रिप्शन है कि आपको ये एक्सपेंस वाइज डिटेल देनी है या नहीं देनी है। ये मैं मानूंगी कि सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी चीज उन्होंने सजेस्ट की, क्योंकि एसएससी को बहुत डिफिकल्टी आ रही थी एक्सपेंस वाइज फाइल करने में, तो ये एक रिलैक्सेशन बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव हुआ फॉर एसएससी। ये जो पार्ट 5 है ये एक तरह से जो कि आप एज ऑडिटर आप चाह रहे हैं कि इसमें आपको बाइफिकेशन देना चाहें कि जो जो एसएससी की लाइबिलिटी बनती थी और उसने नहीं पेमेंट किया तो आपको रेट वाइज इसके अंदर दिखाना है आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। ये एक वेरिफिकेशन है कि जो भी है वो फेयर एंड करेक्ट है। नाउ आई विल प्रोसीड टू द केस स्टडी। पहली केस स्टडी है इनकी अपने कोई भी सप्लाई कर रहा है टैक्स रिलेटेड अपने वीडियो बनना है में तो उसके क्या होगा। मान लीजिए कि आपका जो एक्चुअल टैक्स है एज बुक्स ऑफ अकाउंट्स 10,000 था, लेकिन जो आपका 3B में पेमेंट किया गया 18-19 में वो 11,000 है। तो इस केस में जो आपका टैक्स पेबल है टेबल 9 में वो 10,000 आएगा, लेकिन टैक्स पेड है वो ऑटो पॉपुलेटेड होकर 11,000 आएगा। ये डिफरेंस का सिर्फ आपके 9C में इस रीजन की वजह से, क्योंकि मेरा कुछ पेमेंट क्या मैंने 17 से रिलेटेड 18-19 में किया था, इस वजह का डिफरेंस है। बस ये रीजन डाल के आपको फाइल कर देना है अपना 18 ना। जैसा कि 18-19 में बुक कर ली थी बुक्स
पॉसिबल है कि आपने सप्लाई रिकॉर्ड किया 18-19 में लेकिन पेमेंट पहले ही कर दिया है। ऑब्वियसली पॉसिबल है, एक ही केस में पॉसिबल है, एडवांस के केस में, जो कि आपको पेमेंट करना होता है जब एडवांस रिसीव हो जाता है, ना कि जब जब आपने आउटपुट सप्लाई दी है। तो इस केस में ऐसा होगा कि आपने जो टैक्स, इस केस में मैंने जैसे कि जो अपना एडवांस में टैक्स पेमेंट बनता है 17-18 का, वो आपने 10,000 पेमेंट किया अपने 3 वीक के अंदर, लेकिन जो इनवॉइस इशू हुई है वो 18-19 में इशू हुई है। तो इस केस में 18-19 में किस टाइप का डिस्क्लोजर आएगा? 9 और 9C में। आपको 9 में किसी तरह का डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर जो टेबल 5 आई है, अनएडजस्टेड एडवांसेस इन द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो टेबल ऑफ GSTR 9C वो रिफ्लेक्ट करेगा 10,000 का। नाउ ऐसी सप्लाई जो आपने रिकॉर्ड तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 18-19 में कर ली थी, लेकिन जो पेमेंट है वो आपने 19-20 के 3B में किया। इस केस में जो आप जानते हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 18-19 से रिलेटेड आपने कोई ITC, क्रेडिट डेबिट नोट, कोई भी अमेंडमेंट अगर 19-20 में किया है, जो कि पीरियड है अप्रैल 19 से सितंबर 19 के बीच में, तो वो आपको टेबल 11, 10, 11, 12, 13 में कॉरेस्पॉन्डिंग दिखाना है। ये जो भी ऑटो पॉपुलेटेड होता है 5 and 10 और 11 ऑफ एनुअल रिटर्न, तो उसमें वो ऑटो पॉपुलेट होके आएगा फिगर। अलग से हमें कहीं मेंशन करने की जरूरत नहीं है 9C में। हमें प्रोसीड करना चाहिए 18-19 के लाइबिलिटी अब में, तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद SSC is to make the payment by GRC 03 along with वंस रिसीवर 17-18 में इनवॉइस भी सेम उसी फाइनेंशियल ईयर में इश्यू कर दी थी, लेकिन जो पेमेंट है वो आपने 3B में 18-19 में पेमेंट किया। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जब आपको डिस्क्लोजर 9 में किसी तरह का कोई भी डिस्क्लोजर नहीं देना है, हाउएवर सेम चीज जो आपका टैक्स पेड है वो ज्यादा दिखाएगा एज कम्पेयर टू टैक्स पेबल। तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग 9C फाइल करते हुए अपना ऑब्जर्वेशन देना है कि ये जो टैक्स है वो 17-18 से रिलेटेड था, जो कि हमने 18-19 में पेमेंट किया। हाउएवर डिपार्टमेंट कैन आस्क फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आपकी लायबिलिटी कम बनती थी, आपने कब पेमेंट किया उसके बीच का इंटरेस्ट 18% के हिसाब से। अब एक केस ये बनता है कि 17-18 का पेमेंट जो कि आपने सब्सिक्वेंटली, मान लो कि 17-18 में आपका 10,000 ही पेमेंट बनता था और आपने गलती से 11,000 कर दिया, और वो जब आपको पता चला कि वो 1,000 का एक्सेस पेमेंट किया, तो वो आपने सब्सिक्वेंटली 18-19 के 3B में एक मंथ में एडजस्ट कर दिया। तो इस केस में क्या करना चाहिए? तो ऑब्वियसली जो भी आपका डिफरेंस जो आएगा वो आपका टैक्स पेबल और टैक्स पेड में ही आएगा। तो इसमें भी आपको सेम करना है कि आप जब 9C फाइल करते हुए आपको कमेंट करना है कि ये जो भी ऑडिट रिपोर्ट है वो एनुअल रिटर्न 17-18 के साथ में पड़ी जाए। एक मेजर पॉइंट है, दो केसेस आते हैं इसके अंदर में बाइफरकेट, जैसे कि आपने इनवॉइस में तो सही दिखा है और आपने GST रिटर्न में भी सही दिखा है, तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने दोनों में से एक भी जगह गलत कर दिया है तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो इस दिक्कत का सोल्यूशन क्या होना चाहिए, मैं वो आपसे डिस्कस। अगर आपने करेक्ट टैक्स, जो आपको करेक्ट टैक्स चार्ज करना चाहिए था वो CGST और SGST है, और आपने करेक्ट टैक्स ही इनवॉइस पे चार्ज किया है। करेक्ट टैक्स इनवॉइस पे चार्ज करने के साथ साथ में आपने जो है वो डिस्क्लोज भी GST रिटर्न में करेक्ट किया है, तो ऑब्वियसली इस केस में कोई इशू नहीं, आप प्रोसीड कर सकते हैं। आपकी जो भी एक्चुअल आपने दिखाया है सही दिखाया, तो आप एक्चुअल फिगर्स फिल करके आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हाउएवर आपने इनवॉइस में तो करेक्ट चार्ज किया है, लेकिन आपने GST रिटर्न्स में गलत दिखाया है। तो इस केस में क्या होना चाहिए? इस केस में ये होगा कि जो आपको 9 जो है वो एक्चुअल के हिसाब से फाइल करना है। जो आपने CGST SGST
जो भी आपका एडिशनल टैक्स बनता है सीजीएसटी एसजीएसटी में वो आपका पेमेंट होगा डीआरसी 03 से, और जो भी आपने एक्सेस पेमेंट किया आईजीएसटी में वो आपको रिफंड फाइल करना पड़ेगा। नाउ अपने इनवॉइस में ही गलत चार्ज किया है लेकिन जीएसटी रिटर्न्स में सही दिखा है, तो इसमें एक तरह से यही होगा कि या तो अगर आप अमेंड कर सकते हैं जीएसटी के इनवॉइसेस, जो कि अब पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हम 18-19 के फाइल कर चुके हैं अपनी टैक्स ऑडिट के रिपोर्ट भी, तो इस केस में यही होगा कि आपको कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट या डेबिट नोट इशू करने होंगे। नाउ ऐसा है कि है ना, आपने करेक्ट टैक्स इनवॉइस में भी चार्ज नहीं किया और आपने जीएसटी में भी डिस्क्लोज नहीं किया, तो आपको एक एक तरह से जो भी सीजीएसटी और एसजीएसटी का एडिशनल टैक्स बनता है वो आपको डीआरसी 03 से पेमेंट करना पड़ेगा। रिवाइज इनवॉइस भी इशू करना पड़ेगा क्योंकि आपने टैक्स में भी इनवॉइस गलत चार्ज किया है, और आपको जो भी आपने रॉन्गली एक्सेस पेमेंट किया है आईजीएसटी का वो आपको एज क्लेम रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल अब मैं आरसीएम से रिलेटेड कुछ केस स्टडी डिस्कस करना चाहूंगी। रेट जो था वो आपका 10,000 का बुक किया आपने 17-18 में, लेकिन जो पेमेंट है वो आपने 18-19 के पीवी में किया। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में प्रेस रिलीज में ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दिया था कि आरसीएम से रिलेटेड जो भी आपका पेमेंट जिस भी कॉरस्पॉन्डिंग ईयर में आप कर रहे हैं तो उसी में ही आपको रिफ्लेक्ट करना है। ये डिपेंड नहीं करेगा कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब उसे शो किया है। तो क्योंकि आपने 17-18 का 18-19 में पेमेंट किया है तो टेबल 4G वो आपको जीएसटीआर 9 में उसमें दिखाना है कि आपने कितना पेमेंट किया, और टेबल जो 9 है जिसमें आपको बाइफिकेशन देना है रेट वाइज ऑफ आरसीएम और आउटवर्ड सप्लाई, उसमें भी ये दिखाया जाएगा। फिर आपने 18-19 में पेमेंट आपने बुक 18-19 में किया था फ्रेट 10,000, लेकिन पेमेंट आपने 19-20 में किया। आपको 18-19 में किसी तरह का कोई भी डिस्क्लोजर दिखाने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ जो है वो 19-20 के अंदर ही आएगा। और इन केस कोई भी आरसीएम की लाइबिलिटी आपकी रह जाती है पेमेंट करने, जैसे कि ओरिजिनल इनवॉइस आपने 17-18 में इशू किया, क्रेडिट नोट भी आपने अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 17-18 में कर दिया था, लेकिन जो एडजस्टमेंट है क्रेडिट नोट का वो आपने अपने सीवी में 18-19 में किया। तो इसके भी 17-18 करते हुए आपने टेबल 11 में जो कि सप्लाईज टैक्स रिफ्लेक्ट टू अमेंडमेंट उसमें ऑलरेडी आपने दिखा दिया होगा, तो आपको 9 और 9C में कोई भी डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं। हाउएवर जब टैग 19 का वो मैच नहीं करेगा अपना 19 में ही आपने क्रेडिट नोट भी इशू किया और 18-19 में ही आपने अपने रिटर्न में 3V में दिखाया। तो इस केस में क्या होगा, टेबल जो 4 आई है वो क्रेडिट नोट की उसमें आपको रिफ्लेक्ट करना है, प्लस जो टेबल 5Q है उसके अंदर आ जाएगा। 18-19 में इनवॉइस इशू किया, 18-19 में ही क्रेडिट नोट इशू किया। आपने जो क्रेडिट नोट जो भी रिफ्लेक्ट किया आपने 3B में वो बिफोर सितंबर, जो कि अप्रैल 19 से लेकर सितंबर 19 के बीच में आपने 3B में दिखा दिया है, तो टेबल 11 में आएगा क्योंकि आपने नेक्स्ट ईयर में दिखाया है। और टेबल आपने जो भी अपना क्रेडिट नोट जो कि सितंबर 19 के बाद में किया है तो ये अलाउ नहीं है। अब ऑलरेडी नेक्स्ट डे के सितंबर तक ही अलाउड है, तो ये जो है वो 9 में कहीं भी शो नहीं होगा, और टेबल 5 से जो कि है क्रेडिट परमिसेबल नहीं है जीएसटी में, तो उस कॉलम में आएगा। हाउएवर आप अपने 3B में अपनी एडजस्टमेंट कर तो दिया है, लेकिन एक तरह से आप एडजस्टमेंट करने के लिए लायबल नहीं है, तो आपको इतने का इतना पेमेंट डीआरसी 03 से करना पड़ेगा अलॉन्ग विद
ये है ना ऑलरेडी क्रेडिट नोट का डिस्कशन आउटपुट सप्लाई का डिस्कशन कर चुके हैं, आरसीएम का कर चुके हैं। अब मैं आईटी से रिलेटेड थोड़े केस डिस्कस मुझसे ए है 50,000 उनके क्रेडिट थी 1,50,000 के क्रेडिट में से 1 लाख उन्होंने मार्च 18 तक ही ले लिया और रेस्ट जो 50,000 है वो अप्रैल 18 से मार्च 19 के बीच में उन्होंने लिया। तो इस केस में क्या होगा 18-19 में, क्योंकि मैंने जो 50,000 है वो अपने 3B में भी 18-19 में दिखाया है, तो मुझे जो टेबल 6 या 9C की बाइफिकेशन करना होगा भले ही वो 17-18 से रिलेटेड थी, और अपने 9C के अंदर 12B और 12E में दिखाना होगा। 12B जो मैंने डिस्कस किया जो अपने 17-18 में बुक की थी और 18-19 में क्लेम की, और 12E ऑटो पॉपुलेट होके आएगा जो फिगर 7J से एनुअल रिटर्न के, उसमें भी ये फिगर इंक्लूडेड होगा। जब हमने 17-18 का रिटर्न फाइल किया होगा तब उसमें टेबल 8C जो कि 2A का बाइफिकेशन देती है और टेबल 13 जो भी क्रेडिट हमने 17-18 से रिलेटेड 18-19 में क्लेम की वो ऑलरेडी दिखा दिया होगा, तो इसका कोई एक तरह से मेयर डिस्क्लोजर ही है, कोई मॉनेटरी इम्पैक्ट नहीं आएगा इस चीज का। अकाउंट में 18-19 में, और उसमें से 50,000 जो है वो उसने 19-20 में क्लेम की, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ऐसा होगा कि उन्हें टेबल 8C में दिखाना है जो भी क्रेडिट 19-20 में ली, और टेबल 13 ऑफ GSTR 9 में दिखाना है, और टेबल 12C ऑफ GSTR 9C के अंदर रिफ्लेक्ट करना है 50,000। अकाउंट्स में किसी तरह की आईटीसी बुक करना है, लेकिन आपको पता था कि क्योंकि मेरी लैप्स हो जाएगी तो मैं सितंबर से पहले ले लेता हूँ, तो आपने 3B में तो ले ली है वो क्रेडिट, तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि आपने वो अपने 3B में ले चुके हैं वो क्रेडिट, तो आपको टेबल 6 में वो बाइफिकेशन देना ही है, और टेबल 12 जो कि आपके ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा फिगर, उसमें भी टेबल 14 जो कि ऑप्शनल कर दी गई है इन केस आप फाइल एक्सपेंस पर डिटेल, तो उसमें भी वो चीज दिखानी रहेगी। और ये मैं हम रिकमेंड करेंगे कि ऑडिटर को एक नोट जरूर डालना चाहिए कि ये जो बिल्स है वो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं गए हैं लेकिन हमने 3B में लिया है, और मोर ओवर एक एडिशनल चीज ये करनी चाहिए कि जो 3B में उन्होंने ले ली है क्रेडिट और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो बिल भी एक बार वेरीफाई कर लेने चाहिए कि सही है ये। लास्ट ये भी अकाउंट में बुक कर लिए लेकिन क्रेडिट ही नहीं लिए 3B में, तो इस केस में क्या करना चाहिए, 9 में कोई तरह का डिस्क्लोजर नहीं होगा, क्योंकि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बुक कर लिए तो टेबल 12 ये जो 9C है उसमें वो रिफ्लेक्ट होगा। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ले लिया लेकिन 3B में नहीं लिया, तो जो इस इन दोनों का डिफरेंस है वो आपको प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन देना होगा कि इस वजह से ये मेरे रिकंसिलेशन ये रीजन है मेरे डिफरेंस। पहले हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इफ यू हैव जो टैक्स यू हैव चार्ज इज रॉन्ग इन योर इनवॉइस और यू हैव रिफ्लेक्टेड इनकरेक्ट इन योर प्रॉपर रिटर्न्स। नाउ अब ये आता है कि आपने जो आईटी से अवेल किए वो रॉन्ग हेड में किए, तो उस केस में क्या करना चाहिए। मान लो कि जो आपको आईटी से जो आपकी मेंशन है बिल में वो आईजीएसटी है और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी करेक्टली बुक किए, लेकिन अपने आईटीसी सीजीएसटी और एचजीएसटी में ले लिए, तो उस केस में क्या करना चाहिए। पहला केस ये होगा कि आपने जो रेक्टिफिकेशन है वो 18-19 का 18-19 में कर दिया, आपने गलती से जो जीएसटी एचजीएसटी ली थी वो आपने रिवर्स करके वापस आईजीएसटी में ले लिए, तो इसमें कोई नहीं आएगा एडजस्ट के साथ आपको फाइल करनी है। मतलब आया कि आपने तो उसी तरह का किया ही नहीं है, तो हमारे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि आपको जो भी करंट ईयर का 3B आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उसमें आपको प्रॉपर रेक्टिफिकेशन के साथ में डिस्क्लोजर दे देना चाहिए। आपको जितना भी आपका सीजीएसटी एचजीएसटी में रिवर्सल बनता है वो रिवर्स करके आपको आईजीएसटी में क्रेडिट ले लेनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से रेवेन्यू न्यूट्रल सिचुएशन है। और
एक मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपने ना एडजस्टमेंट किया या फिर नेक्स्ट ईयर में किया, अगर एडजस्टमेंट नहीं किया तो आपको करंट ईयर में करना है। अगर आपने नेक्स्ट ईयर में किया है तो आपको जो आपकी टेबल 13 है, 10, 12 या 13, उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स दिखा के आगे के एनुअल रिटर्न अमेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता, एक बार जो फाइल हुआ वो सही ही माना जाएगा। आपको कोई तरह की एक तरह है कि है ना, आपने मान लो कि ये जो दिक्कत है इंटर स्टेट का इंटर में दिखा दिया या फिर वाइस वर्सा, ये मैं ऑलरेडी अपने केस स्टडी में कवर कर चुकी हूँ। तो मैं ये दिखता है कि शेड्यूल 1 के हिसाब से ऐसी बहुत सारी सप्लाई जो विदाउट कंसिडरेशन दी जाती है शेड्यूल 1 में, तो वो क्या आपको एनुअल रिटर्न में दिखानी आपको वो अब कोई भी आपने रिकवर किया एज प्योर एजेंट तो क्या वो आपको एनुअल रिटर्न में डिस्क्लोज करना है, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से जो भी अमाउंट रिकवर किया गया है एज प्योर एजेंट वो एक्सक्लूड किया गया है, आपको वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना है, तो नहीं दिखाने की जरूरत है। लेकिन लेकिन एक तरह से नो सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जो भी आपको मतलब नो सप्लाई ऐसा है कि जो आपके जीएसटी के पर्व्यू से बाहर है या फिर जो आपको वैल्यूएशन रूल में इंक्लूड नहीं करनी है जो जो चीजें, तो वो भी आपको टेबल जो भी 5D, E और F है GSTR 9 के उसमें कॉरेस्पॉन्डिंगली दिखाना है। आईसी सेल्स जो है वो आपका एनुअल रिटर्न में दिखाना है या नहीं दिखाना है, शेड्यूल 3 के हिसाब से जो भी जीएसटी के पर्व्यू से बाहर है वो नो सप्लाई में आते हैं, और इसीलिए टेबल 5F में ये भी चीज आपको रिफ्लेक्ट करनी है ऑफ एनुअल रिटर्न। ऐसा होता है कि हमें जो प्रोविजन बनाना होता है फॉर अनअर्न्ड इनकम इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो क्या जो हमने प्रोविजन बनाया है फॉर द इनकम अनअर्न्ड इनकम इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो वो भी आपको एनुअल रिटर्न में डिस्क्लोज करना है, क्योंकि एक तरह से ये जो प्रोविजन है वो सप्लाई नहीं है तो इसका कहीं भी डिस्क्लोजर नहीं आएगा एनुअल रिटर्न और 9C के अंदर। ब्लॉक क्रेडिट है उसका आपको कैसे डिस्क्लोज कर देना है, जो कि मैंने ऑलरेडी दिखाया था कि बहुत एसएससीज दो तरह के उन्होंने डिस्क्लोजर दिखाए हैं अपने 3B में। एक उन्होंने जो टेबल 4 जो है जो आईटीसी की है 3B के अंदर, एक एसएससी कुछ एसएससी ऐसा करते हैं कि ऑल अदर आईटीसी में ही नेट इफेक्ट देके जो भी उनका रिवर्सल बनता है वो फिगर दिखाते हैं नेट ऑफ फिगर। एक होते हैं जो जो भी प्रॉपर उनका, जैसे मान लो कि 10,000 उनकी एलिजिबल आईटीसी है और 17,500 की जो उनकी आईटीसी है वो 2,000 है, तो 12,000 तो ऑल अदर आईटीसी में दिखाते हैं, 2,000 जो है वो अदर रिवर्सल में दिखा के जो भी उनको एक अलग से डिस्क्लोज करना होता है 17,500 का वो 2,000 उसमें दिखाते हैं। तो इस केस में जिन जिन एसएससीज ने 2,000 इनएलिजिबल क्रेडिट दिखाई है 3B में, तो वो उन्हें ही दिखानी चाहिए अपने एनुअल रिटर्न में, जिन्होंने नेट ऑफ करके दिखाई है उन्हें नेट ऑफ करके ही अपने टेबल 6 में दिखाना चाहिए। अब कुछ एसएससीज ऐसे होंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया था 18-19 का चलो मैं 17-18 की बात कर लेती हूँ। 17-18 का 31 मार्च 2018 से पहले या फिर उनका 31 मार्च 2018 तक पेंडिंग था अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन, तो इस केस में क्या एसएससी लाइबल है एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए, क्योंकि जो स्टेटस था टैक्स पेयर का वो रजिस्टर्ड था ड्यूरिंग 17-18, तो उन्हें रिक्वायर्ड है फाइल करने के लिए, इवन दो उनकी पेंडिंग होगी अगर अप्रूवल तो भी उन्हें रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ना। और फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है वो एलयूटी एग्जीक्यूट करना भूल गए, एक्सपोर्ट किया वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में ही किया, तो अब 9C में क्या करना चाहिए, उन्हें विद पेमेंट ऑफ टैक्स दिखाना चाहिए या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स दिखाना चाहिए, क्योंकि हमने ओरिजिनली विदाउट करेंगे कि अब एज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में दिखा के एक ऐसे चीज
है 2A से रिलेटेड, उसमें ऐसा था कि एक लैप्स का लास्ट में कॉलम आता है कि ये वाली जो क्रेडिट है वो लैप्स हो चुकी है। तो क्या जो लैप्स हो रही है क्रेडिट वो हमारे आईटीसी जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट है उसमें रिड्यूस होगी। एक तरह से जो आईटीसी लैप्स जो फिगर आ रहा है वो इंफॉर्मेटिव है और वो कोई भी इम्पैक्ट नहीं करेगा क्रेडिट लेजर है जो कि अल्कोहल करता है, तो क्या वो थ्रेशोल्ड लिमिट में माना जाएगा? और डेफिनेशन है वो एग्जाम टर्नओवर को भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो जो कि जीएसटी जिसपे जीएसटी लगता नहीं है, क्योंकि अल्कोहल जीएसटी के प्रोव्यू से बाहर है, लेकिन ये एग्जाम टर्नओवर का पार्ट माना जाएगा। और एग्जाम टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट है, तो 5 करोड़ की लिमिट में जो एग्जाम्पल में टैक्स एक्सक्लूसिवली डील करे हुए एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में, लेकिन मुझे कोई भी रीजन की वजह से मुझे कंपल्सरीली टू रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी रिजिम, तो क्या मुझे 9 से फाइल करने की जरूरत है? मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्योंकि एग्जाम टर्नओवर जो है एग्जाम सप्लाई जो है वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट है, तो इस वजह से अगर आपकी एग्जाम सप्लाई 5 करोड़ से एक्सीड कर रही है तो आपको 9C 18 19 का भी फाइल करना है। अब मैं कुछ डिस्कस करूंगी प्रॉब्लम्स जो कि फेस की जाती है वेल फाइलिंग एनुअल रिटर्न ऑफ 18। अभी तक क्रेडिट लीजिए का ओपनिंग बैलेंस है, मतलब कि जो क्लोजिंग बैलेंस है 17-18 का, वो इसमें 18-19 में ओपनिंग बैलेंस पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ताकि जो भी मेरा ओपनिंग बैलेंस है प्लस माइनस जो भी मेरे 18-19 में जो फिगर आ रहा है वो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से मैच हो सके और मुझे कोई एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े अलग से वर्किंग बनाने के लिए। मोर ओवर, मैंने जब डिस्कस किया था फॉर्मेट, तब आप जानते हैं कि 9 और 9C के अंदर वो ट्रांजेक्शन दिखाने की फैसिलिटी है जो आपने 18-19 से रिलेटेड थी और आपने 19-20 में क्लेम की है। फॉर्मेट में अभी तक मॉडिफिकेशन नहीं लाया गया है, जो आपने जो भी 17-18 से रिलेटेड जो भी आपने चेंजेस या फिर जो भी आपने आईटीसी रिवर्स या फिर जो भी आपने आईटीसी अवेल की 18-19 में, वो आपको कहाँ शो करनी है, ये अभी तक कोई भी प्रॉपर टैब नहीं दिया गया है। तो ये भी एक तरह की दिक्कत रहेगी जब एनुअल रिटर्न नहीं थे 17-18 का एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए, तो पोर्टल जो है वो आपको 18-19 का रिटर्न भी फाइल करने की फैसिलिटी नहीं देता है। तो ये एक तरह से बहुत ही हैरेसमेंट है एसएससी की, क्योंकि उन्हें जब 18-19 को लाइबल ही नहीं थे फाइल करने के, लेकिन अब 17-18 को लाइबल नहीं थे फाइल करने के लिए, लेकिन क्योंकि अब उन्हें 18-19 में कंपल्सरी फाइल करना है, तो वो लाइबल हो जाते हैं 17-18 फाइल करने के लिए। तो फिर कोई ऑप्शनल जो बेनिफिट दिया गया है कि ऑप्शनल है, वो किसी तरह से अवेलमेंट कर ही नहीं पाया एसएससी। तो ये एक तरह की दिक्कत जो है वो सरकार को सुधारनी चाहिए कि 17-18 का उन्हें अब बंद ही कर देना चाहिए, जो जो एसएससी नहीं थे रिटर्न फाइल करने के लिए लाइबल, तो उन्हें वो ब्लॉक कर देनी चाहिए फैसिलिटी और 18-19 के अनेबल कर देनी चाहिए। जो भी रिफ्लेक्शन ऑफ फिगर्स, वो तो पता ही है, जो भी ऑटो पॉपुलेटेड फिगर आता है जो हम डाउनलोड करते हैं टूल, वो एक दूसरे से कभी भी मैच नहीं करते हैं। तो एक तरह से मतलब सरकार को कि इस डेट पर जो फाइल किए थे, मान लो कि अभी जो है 56/2019 में दिखाया गया है कि जो जीएसटी 9 के जो फिगर्स और जीएसटी 2A के जो फिगर्स है वो जो ऑटो पॉपुलेट होंगे 18-19 में, वो 11 अक्टूबर 2019 तक ही ऑटो पॉपुलेट होंगे। आपको पता है कि जो जीएसटी 1 की ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई थी जनवरी 20 तक, तो अगर डेट एक्सटेंशन हो गया था तो उन्हें ऑब्वियसली जो कट ऑफ डेट है वो भी एक्सटेंड कर देनी चाहिए। तो ये जो दिक्कत आ रही है ऑटो पॉपुलेटेड फिगर और डाउनलोडेड फिगर्स में मिसमैचिंग की, ये अभी तक किसी भी तरह से रेक्टिफाई नहीं की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ
एक जो ऑनलाइन यूटिलिटी है वो जल्दी ऑपरेशनल में लानी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाह रही हूँ तो क्योंकि मैं लाइबल हूँ 9 और 9C फाइल करने के लिए, लेकिन पोर्टल ने अभी तक अनेबल ही नहीं किया है 19-20 का। मान लो कि मैंने 18-19 में मैं 9 और 9 से लाइबल थी फाइल करने के लिए। 19-20 में मैंने कुछ मंथ्स में अपना बिजनेस कैरी ऑन किया और फिर मैंने 19-20 का मिड ऑफ द ईयर मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया और कैंसिलेशन लगा लिया। तो जब क्योंकि अभी तक 19-20 की यूटिलिटी ओपन नहीं हुई है तो मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक यूटिलिटी ओपन नहीं हो जाती है। तो ये भी एक तरह से सही चीज नहीं है। एसएससी को बहुत हैम्पर होता है, बहुत ही दिक्कतें फेस करनी पड़ती है इस चीज के लिए, तो उन्हें ऑपरेशनल जल्दी में ले आना चाहिए ना। और मैं प्रोविजन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम फेस होती है एसएससीज को एनुअल रिटर्न फाइल करने में, वो डिस्कस करना चाहूंगी। 16 तो जो कि 180 डेज का रिवर्सल बनता है। आपने अगर 180 डेज में पेमेंट नहीं किया है तो आपको विद इंटरेस्ट आपको रिवर्स करना होता है। तो ये जो एक दिक्कत रही है, ये हमेशा एसएससीज को दिक्कत रहती है। जो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें एजिंग में बहुत दिक्कत आती है। और मोर ओवर जो 180 डेज का एक टाइम पीरियड है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड है। कुछ कुछ केसेस में, जैसे कि मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, मुझे ऑब्वियसली हायर क्रेडिट की जरूरत रहेगी, तो उस केस में 180 डेज का प्रोविजन मुझ पर लागू ही नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है कि रिटेंशन मनी लेते हैं कस्टमर से, तो उस केस में भी जो है वो 180 डेज का पेमेंट नहीं करते हैं। कुछ पेमेंट उनका हमेशा रिटेन हुआ हुआ रहता ही है। तो उस केस में भी ये 180 डेज का प्रोविजन नहीं लागू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ईयर एंड डिस्काउंट देना है, तो उस केस में मैं क्या करती हूँ कि पहले से कुछ फिगर होल्ड करके रखती हूँ, पूरा पेमेंट नहीं करती हूँ। तो इस केस में भी मेरा 180 डेज प्रोविजन लागू नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऑलरेडी कोविड की वजह से बहुत जो इश्यूज है वो फेस किए जा रहे हैं एसएससीज के द्वारा, तो 180 डेज का रिलैक्सेशन देना चाहिए सभी को। मैं पर्टिकुलरली ये 3 केस डिस्कस किए मैंने जिसमें कि एसएससी को दिक्कत रहती है, लेकिन अभी के हिसाब से हर एक यही बोलूंगी कि इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। प्रेस रिलीज आई थी, उसमें था कि आपको नेट कैश लाइबिलिटी के हिसाब से ही पेमेंट करना रहेगा और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट नहीं आया कि जो टैक्स पेयर है वो नेट लाइबिलिटी पे पेमेंट करने के लिए लाइबल है अपना टैक्स पेमेंट या फिर ग्रॉस लाइबिलिटी पे। नेट लाइबिलिटी ग्रॉस लाइबिलिटी में एक बार शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल मैंने 3B मेरा जुलाई 17 का फाइल करना था, 20 अगस्त 2017, 20 अगस्त से 25 अगस्त उन्होंने बढ़ा दी थी डेट, और मैंने फाइल किया 30 अगस्त को। तो अब ये जो 5 दिन का मुझे इंटरेस्ट पेमेंट लगेगा ड्यू डेट से लेकर फाइलिंग डेट तक, ये किस पे पेमेंट होना चाहिए? जो मेरी क्रॉस लाइबिलिटी थी, जितना मेरा एक्चुअल में टैक्स बनता है आउटपुट सप्लाई पे, या फिर नेट लाइबिलिटी जो कि मेरा आईटीसी यूटिलाइज करने के बाद जो मेरा टैक्स बनता है उसके हिसाब से। यार मैं अब देख और ज्यादातर जो है वो रेवेन्यू के फेवर में ही आ रहे हैं। तो इस केस में क्या करना चाहिए हमें? जैसे पर्टिकुलर एसएससी पे कोई एआर रूलिंग उसने एआर रूलिंग लगाई, तो उस पर्टिकुलर एसएससी पे वो एआर रूलिंग एप्लीकेबल होती है। तो क्या अगर मेरा एसएससी सेम सिचुएशन में फॉल करता है तो क्या मुझे वो एआर रूलिंग लगानी चाहिए और उस हिसाब से टैक्स का पेमेंट करना चाहिए, या जो मेरे हिसाब से जो लॉ के या फिर मुझसे जो भी बनता है टैक्स चाहिए? तो मैं ये ऑडिटर एसोसिएट दोनों डिलेमा में रहते हैं कि इस केस में हमें क्या करना चाहिए, ए या रूलिंग के हिसाब से चलना चाहिए या फिर जैसा हमने किया है आज तक पेमेंट उस हिसाब से चलना चाहिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी एसएससी को कि उन्हें प्रेशर में आके एआर रूलिंग की एआर रूलिंग के हिसाब से एडिशनल टैक्स का पेमेंट नहीं करके जो उन्होंने ऑलरेडी कर रखा है वो ही अब 9 और 9C में रिफ्लेक्ट करें। जब भी लिटिगेशन आता है या जब भी डिपार्टमेंट क्वेरी करता है तब हम उस टाइम उसको हैंडल करेंगे।
up of taxpayers का ऑप्शन देना चाहिए कि जैसे कि हम देखते हैं कि अभी वो मंथली ऑप्शन देता है डाउनलोड करने का। मैं ऑनलाइन पोर्टल पे गई, मैंने वो जनरेट, सबसे पहले तो मुझे जनरेशन में ही 15 मिनट्स लग जाते हैं। उसके बाद मुझे एक एक मंथली 12 महीने का डाउनलोड करने में तो ऑब्वियसली इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो एक सरकार को एक ऑप्शन देना चाहिए कि जिस दिन का भी कट ऑफ डेट जो मेरे ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है फिगर, मान लो कि अगर 11 नवंबर 2019 को मेरा फिगर आ रहा है ऑटो पॉपुलेट होके, उस दिन की मुझे फैसिलिटी देनी चाहिए एक कंसोलिडेटेड 2A डाउनलोड करने की। और जो भी मैंने बताया जैसे कि जो भी ऑडिटर रिकमेंड करता है कि आपको एसएससी को ये 9 और 9C में फाइल करने की जरूरत है, ये एडिशनल पेमेंट 03 ऑटोमेटिक जनरेट नहीं होता है अभी तक चालान। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जो भी ऑडिटर्स रिकमेंडेशन में जो पेमेंट आ रहे हैं वो ऑटोमेटिक उसका चालान जनरेट हो जाना चाहिए, और ताकि एक ये एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए। नेक्स्ट में आप जानते हैं कि जो आप 9 और 9C फाइल करते हैं तो उसमें कुछ प्री रिक्विजिट्स है। एक तो आपका जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्जन 7 और अबव होना चाहिए, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो 2000 या अबव होना चाहिए। तो और एक ईएम साइनर का डाउनलोड होना आपका बहुत जरूरी है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि इतने टेक फ्रेंडली नहीं है अपने इंडिया के लोग, वो अभी तक कुछ लोग मैनुअल ही अपनी बुक चला रहे हैं। तो इस घड़ी में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्री रिक्विजिट्स है ये थोड़े रिलैक्स करने चाहिए। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एमएस कोई भी तरह का हो, वर्जन 7 और आपने स्पेसिफिकली दिया तो वर्जन कोई भी स्पेसिफाई करने के बजाय एक्सेल या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कोई भी आपको ऐसी फैसिलिटी लानी चाहिए कि जो आपका 9 और 9C है जो आउटबाउंड यूटिलिटी वो किसी भी तरह के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर लेगी और किसी भी एक्सेल में काम कर लेगी। मोर ओवर आप जानते हैं कि जब आप 9 और 9C फाइल करते हैं तब आपको राउंडिंग ऑफ के एरर्स आते हैं। आपने मान लो कि 0.18 का भी आपका डिफरेंस आ रहा है तो आपको प्रोसीड नहीं करने देता और आपकी एक राउंडिंग ऑफ की एरर दिखा देता है। तो एटलीस्ट इतना तो अगर कोई स्लाइटेड डिफरेंस आ रहा है आपके 9 और 9C में तो इतना मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो राउंड ऑफ मान को प्रोसीड करे और ऐसी सिली सिली मिस्टेक्स ना निकाले जिससे कि एसएससीज को दिक्कत रहे। और लास्ट फाइनल जो मैं बताना चाहूंगी कि जैसे ही हम 3B फाइल करते हैं या फिर 9 और 9C फाइल करते हैं लास्ट डेट या फिर 1-2 दिन से पहले, तो उसमें एक वो घूमने लग जाता है, बफर करने लग जाता है कि 1.5 लाख टैक्स पेयर्स ऑलरेडी सबमिटिंग देयर रिटर्न, प्लीज वेट, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो ऑलरेडी ये सरकार ने बोला था कि हम जो है कि सॉफ्टवेयर पोर्टल को अपडेट करने वाले हैं, उसकी पोटेंशियल बढ़ाने वाले हैं। तो ये अर्जेंट बेसिस से करके प्रायोरिटी बेसिस पे लाके उन्हें इसकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, एटलीस्ट डबल तो कर ही देनी चाहिए फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द टैक्स पेयर। थैंक यू। मैं चाहूंगी कि आप अपने क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो पुट ऑन करें, और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं इन केस हम क्वेरी टेकअप नहीं कर पाते हैं या फिर हमें कोई डिलेमा रहता है उस क्वेरी में, तो आपको मेल के थ्रू हम उसे पोस्ट कर आपको मेल कर देंगे और आपकी जो भी क्वेरीज है वो उसमें डिसाइड की जाएगी कि आपकी जो भी क्वेरीज का आंसर हम मेल के थ्रू दे देंगे। और अभी के लिए आप एक बार के लिए अपने जो भी क्वेरी है वो हमारे सामने पुट अप कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप कि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। Thank you so much, Preksha ma'am, for discussing all these practical problems arising in GSTR 9 and 9C. Now we will take up some queries and will be answered by Pradeep Jain, sir. Sir, please unmute yourself. हाँ Sir, you are कार्तिक, not audible. Yes, sir. मेरे को मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? अब आ रही है? हाँ. So we will take up the first query
asked by Mr. Piyush. He's asking a sales figure that was originally reported as B2C sales in GSTR 1 was later corrected to B2B sales. So how should we report? Firstly, it was reported as B2C in GSTR 1, and later on it was converted to B2B sales. Okay. So table 4 of GSTR 9 requires that details of B2B and B2C supply वो दोनों में ही आती है. तो एसएससी को B2B टेबल 4 में जो एक्चुअल है वही रिफ्लेक्ट करनी चाहिए टेबल 4 में, और जो B2C गलत हुआ है GSTR 1 में उसको छोड़ देना चाहिए. मतलब मेरे ख्याल से जो रिफ्लेक्शन है 9 में वो सही होना चाहिए, B2B में आप टेबल 4 में ही देना चाहिए. नेक्स्ट क्वेरी कार्तिक. Next query is asked by Mr. Akash. He is asking that what happens if we file more than 20% deviation in value in any of the column of GSTR 9? So what can I expect next from the government and how should I respond? देखिए, अगर 20% से ज्यादा डेविएशन आता है GSTR 9 में, GSTR 1 और 3B के फिगर से, GSTR 1 और 3B के फिगर ऑटो पॉपुलेट हो जाता है GSTR 9 में, और उसमें अगर 20% से ज्यादा आप डेविएशन करते हो तो वो रेड मार्क दिखाता है आपको, और वो एक मैसेज भी देता है कि भाई आप उसको प्रोसीड करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो. अगर आप उसको प्रोसीड करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, बट वो ये रेड मार्क ये बताता है कि भाई ये आपको वार्निंग दे रहा है कि भाई 20% से ज्यादा डेविएशन है. तो इसमें नॉर्मली हमारा ये व्यू है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज आपको नोटिस इश्यू करेंगी कि भाई ये क्या कारण है इतना डेविएशन का, तो वो कारण आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, रीजंस आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. Okay. नेक्स्ट कार्तिक. Next question is asked by Ms. Meenakshi. She's asking that a credit note has been issued for sales return, that is of interstate, in March 2020. However, Okay. no interstate supply has been made in March 20. So how can the liability be adjusted in GSTR 3B? You say if you have raised the credit note and you are not able to GSTR 3B में आप उसको कर नहीं पा रहे हो एडजस्टमेंट. एक्चुअली तो ये कहता है 3(1)(a) की जो टेबल है उसमें से आपको क्रेडिट नोट को लेस करना पड़ेगा. जो सेल्स आ रही है अगले मंथ की उसमें से आपको क्रेडिट नोट को लेस करना पड़ेगा. परंतु अगर सेल्स जो है वो कम है और क्रेडिट नोट का अमाउंट ज्यादा है तो नेगेटिव फिगर 3(1)(a) लेता नहीं है. अगर नेगेटिव फिगर नहीं लेता है तो द ओनली ऑप्शन रिमेन्स विद यू इज कि भाई आप उसको अगले मंथ में कैरी फॉरवर्ड कर लें और अगले मंथ में उसको एडजस्टमेंट करें. परंतु अगर ये फिगर क्रेडिट नोट का इतना बड़ा है कि ये अगले आने वाले काफी महीनों तक इसको नहीं होता है, जैसे आपका एक्सपोर्ट सेल ज्यादा है और डोमेस्टिक सेल है ही नहीं, तो ये एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है. तो फिर या तो आप उसका रिफंड लगा सकते हैं, या एक और ऑप्शन जो लोग करते हैं नॉर्मली एक डिपार्टमेंट को लेटर लिख के आप क्रेडिट नोट की क्रेडिट भी ले सकते हैं. क्रेडिट ले लीजिए और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए कि भाई हमारा ये एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है तो इसलिए हमने क्रेडिट ली है. परंतु ये वाला जो है प्रोविजन नहीं है. अभी एक जो सर्कुलर आया था बोर्ड की तरफ से उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपका एडवांस ज्यादा आपने एडवांस पे जीएसटी पे कर दिया है और आप इनवॉइस भी इशू कर दिया है, परंतु अगर आपका एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप उस केस में रिफंड लगा दीजिए. तो बेटर है कि आप रिफंड के लिए जाए. Okay. Next question is asked by Mr. Narendra. He's asking that how benefits availed by a company of taking ITC as a result of demerger should be disclosed in annual return. अच्छा, डीमर्जर से एनुअल रिटर्न में कैसे रहता है? ये जो एनुअल रिटर्न के उसमें डिस्क्लोज करना है ये होगा मेरे हिसाब से सीरियल नंबर 6 में पार्ट 3 में. तो उसमें आप ये दिखा सकते हो कि एनी अदर आईटीसी अवेल्ड एज नॉट स्पेसिफाइड अबव. तो ये वाला जो है इसको करके आप इसकी रिक्वायरमेंट कर सकते हो और क्रेडिट को आप दिखा सकते हो. नेक्स्ट.
Okay, next question is asked by Mr. Mukesh. He is asking that whether any disclosure is required in annual return for goods sent to a job worker for which ITC 04 has been filed in the financial year. देखिए, when you send the goods on job work, there is no requirement of showing because it goes by the challan. It is not a supply. That's why it is not to be shown in the annual return. But if say you have sent the inputs and they are not returned in 1 year, or suppose you have sent the capital goods and they are not returned in 3 years, then disclosure has to be made in the this in table 4 and table 16B of annual return. परंतु मेरे हिसाब से जो 38/2019 नोटिफिकेशन आया था उसमें फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 में ITC 04 फाइल करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और जब आप वापस रिटर्न करते हैं, अगर जॉब पर करके रिटर्न करते हैं, देन यू रेज द इनवॉइस ऑफ सर्विस टैक्स, तो वो जो है आपको 3B में भी आप शो करते हो एज ए आउटवर्ड सप्लाई, और उसको जैसे शो करना है वही है। परंतु मेरा जो कहना है कि 38/2019 में ये ITC 04 जुलाई 2017 से लेके मार्च 18 तक और 2018-19 में शो करने की जरूरत नहीं है। Next, Karthik. Mr. Praveen has asked that whether advances received during pre-GST regime but against which invoice is not yet issued is to be reported in table 4F. For pre-GST regime or GST regime? Pre-GST regime. If it is a pre-GST तो उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उस पे आपने ना तो पेमेंट किया है ना कोई बात है, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो टेबल 4F में भी नहीं आएगी। तो that is, there is no requirement of showing this pre-GST regime advance because we have not paid and GST on the same. Next. Next question asked by Ms. Meenal. She is asking that GST refund is claimed before March 2019, but it was sanctioned in April 2019. So how to report such kind of situation in table in part 6? Part 6, yeah, part 6 of table 15. So अगर आपने रिफंड लिया है मार्च 18 में और सैंक्शन हुआ है अप्रैल 19 में, तो अपने को तो रिफंड जो मार्च 18 में सैंक्शन हुआ वो ही दिखाने की जरूरत है, और वो 15A में दिखाना पड़ेगा, और देयर इज नो रिक्वायर्ड रिपोर्ट ऑफ सैंक्शनिंग ऑफ रिफंड क्लेम इन दिस टेबल। और वैसे हमने ये थोड़ा सा दिक्कत भी थी, हमने एक रिप्रेजेंटेशन भी गवर्नमेंट को दिया था कि इस पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि भाई क्या करना चाहिए, पर लेटर ऑन नो क्लैरिफिकेशन केम, और हमारा ये व्यू है कि भाई मार्च का आप रिफंड तो शो कर दीजिए जो आपने अप्लाई किया है, परंतु जो सैंक्शन हुआ है वो अगले साल में आया है, तो उसको शो करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट. Mr. Surendra has asked whether petrol dealer need to file annual return under GST. My client is running petrol pump and selling lubricant also. Okay. See, petrol is out of GST. That you all know it is non-GST item. No GST is applicable on the same. But lubricant, yes, on lubricant GST is applicable. So that's why now the problem comes if whether you have to file the annual return or not. So aggregate turnover is to be seen. If the aggregate turnover includes exempt supply, export goods or services or both, or interstate supply, all supplies are included. And exempt supply की जो definition है अगर उसमें देखें तो non GST वाले भी include है, पेट्रोल और डीजल की non taxable supply जो है उसको भी include किया गया है। तो फिर उसको भी अगर अपन इंक्लूड करेंगे और उससे टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ऊपर चला जाता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, और अगर 5 करोड़ से ऊपर चला जाता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19, तो उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। नॉर्मली पेट्रोल पंप हैव सो मच ऑफ टर्नओवर, दैट्स व्हाई यू हैव टू फाइल, बिकॉज एग्जेम्प्ट सप्लाई भी है और टैक्सेबल लुब्रिकेंट की भी सप्लाई है, तो उस केस में आपको GSTR 9 और 9C फाइल करना पड़ेगा। Yes, Karthik. Okay.
we will take the session is going to end, so I will request all our participants to kindly mail all the questions to us. We will definitely reply on your mail. So I think there are a lot of queries coming. The session is going to end, so I will request so everybody to please mail us. We will definitely reply. We will definitely reply the same. Thank you, Preksha, for conducting very good session, and thank you, Karthik, for handling, and thank you, Bharat, also for nice introduction. Thank you very much. We will reply you will give us a reply. This all these queries we will reply on you. Thank you. Thank you very much. Okay. Thank you, everybody.